Literally, you're listening to Arijit sing अच्छा, and ये you're हुआ है? crying and you're like, ओहो। you're like, I love you, but we can't be together because Nothing's gonna change my love for you. एक लड़का मर्द कब बनता है? बोल दिया मैंने। he's like given such a fadu line and then he's just like, बट मैंने मोस्टली जितने अपनी लाइफ के बड़े गाने दिए हैं मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। शराब Looking at पीने her के बाद face. क्या करते हैं पंजाबी बंदे? सो जाते हैं। ਪਹਿਲੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਨੌ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਣ ਕੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਨੀ ਪੱਟੂ ਫਿਰਦਾ। Super Hits 93.5 Red FM. This is Dilli ki drama queen Swati here on Social Saba. I have with me Furtile Log. Furtila, the movie which is releasing next week. Congratulations, first of all. Thank both of you so much. What a beautiful pairing. Let me just say that at the start of it. Thank It is you. such a cute pairing together. Thank Something we you. did not know we needed. I make everyone look good. Hana, you do. I agree. Because you look good from all the angles. No, don't worry. You're making the mic look good. But coming back, congratulations. Let's talk about the movie. Movie जो है काफी टाइम से चल रही थी and release finally हो रही जी. है. You guys are both coming after a long time. You are coming after a long Yep, time yep, in a yep, movie. Of course, I saw Bhaijan also. बट पंजाबी मूवी बोल सकते Punjabi हैं। movies बोल सकते हैं. Correct. So that's the way to go about it. Tell us a little bit about the movie and why and when did you decide to do this? What was the reason? सो जैसे आपने बोला ही पंजाबी में हूँ या हिंदी में हूँ, आप हिंदी पंजाबी दोनों कर सकते हो. तो हिंदी ये बोलेंगे पंजाबी में बोलता हूँ। बढ़िया. क्योंकि इनको पंजाबी आती नहीं, इनके हाँ, डब्बुए तभी में. तभी सो ठीक है यार, आजकल सब सच है. ठीक है, सही है, जितना सच रहेगा उतना ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। सही लोग फॉलो करेंगे. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 15 20 ਉਸੇ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੇਡ ਚਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। इंस्टाग्राम ने ट्रेंड बाद में शुरू किया था, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ने पहले बताया ट्रेंडिंग है ये, ट्रेंड शुरू करो. ਸੋ ਜੋ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜਾਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਮੈਂ 4-5 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਾਫਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਰ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਮੈਂ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਡਸ ਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਗਾ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਮ ਗੁਪਤਾ ਬੇਵਫਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਰੈਕਟ ਮੇਰੀ ਸੋਨਮ ਗੁਪਤਾ ਬੇਵਫਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਨਿਊ ਏਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਹੀ ਖਾਚਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਮ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੋਰਮਲ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਗ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਟ ਕੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਟੋਰਾ ਕੱਟ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸਭ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਨੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ, ਬਾਈ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਵਾਲ, ਤੇਰੇ ਦਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਫੈਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਯੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਜਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ 60-70% ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਲੁੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ plus point ho janda. Amira, the Punjabi movies is something the world you've stepped into. You know, you come with a wide variety of experience in different industries, right? So, was there an apprehension to join the movie industry first? I mean, not really. Actually, this has been my childhood dream. But bachchan se I've always wanted to be an actor. That was very clear. But the way I got into it, like when I started with modeling. So I never wanted to be a model. I never liked that whole thing. I was a little scared also. I was like, okay, no dialogues. They just want me to pose and all. I found it very like whatever. But then I started loving it. But then I started doing commercials, getting casting calls. And you know, slowly, it's all through hard work that I've reached here. It's not luck, you know. So even with Punjabi cinema, I was very excited because it's at least, you know, like close to Hindi. Whereas when I did South, that was a totally different world. Matlab, I didn't understand anything. Different culture also. It's difficult, yeah. When you really don't understand people speaking on set, at least with Punjabi, sometimes, when they speak really fast, I'm like, nahi, holi bol do, please. You know? But I can still understand. No, agreed. It's something you have heard, you can fathom ki this is what they mean, and you can make out ki ye baat ye kehna cha rahe hain, ye matlab hai is baat ka, and this is what is and closer to. I've heard so many Punjabi songs also. I have a Punjabi playlist for my gym and everything. You know what I mean? So you've heard the language. So it's like a natural progression, I think. That's what you mean. It was just a natural choice to go into it. You know, Parsi Punjabi, yes. तो ये तो पारसी पंजाबी तो बहुत ही next level mix हो गया मतलब. But like, you know, and it feels so similar to like you know, like a second home because they're so sweet. So Furtila is essentially a college romance. Yes. College romance आप लोग का कैसा था? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ? आप दसो पहले. ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ऐसे मत बोलना शुरू से पहले खत्म हो गई, रिजेक्ट हो गया, मैं ऐसा कुछ मत बोलना. This is very sweet actually. अच्छा, you know? Okay. मेरी शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है। पकड़ के रखी लिया आपने एक ही बार में ग्रास. हाँ, तो मेरी ये स्टोरी. Touch wood. That's so cute. That's incredibly तभी cute. मैंने बोला छोटी सी है तो मतलब ये है। तो फिर तो हमारा we are मेरी looking तो at spice शुरू ही from you. उस टाइम खत्म भी हो गया. अभी तो मैं सिंगल बहुत खुश हूँ. काम पे ध्यान. That's what I say. No, but a college romance is, I think, one of the first times you get into like serious romance, right? So how bad was the heartbreak? It was really bad. I think both of us, like, we were just like toxic for each other. That's why, you know, now when you see the reels, you're like, #stay toxic. I'm like, I was. No, and it's not a good place to be in. It's horrible. But, you know, I feel like you need that little bit of dard, you know. I like it. Like, now I can laugh. But yeah, at that time, it was like, matlab, literally you're listening to Arijit Singh Achha, and ye you're hua hai? crying and you're like, Oh. I love you, but we can't be together. Because Nothing's gonna change my love for you. मेरा life इतना खराब. And then you're like, okay, let's ये प्रोमो बना देना प्लीज ना, इस आवाज का प्रोमो बना देना. And then you're like, let's get back together. And the next day you're all fine. But then the यहाँ second से day एपिसोड you're शुरू होना like, चाहिए. कौन आ गया ये रो रहा है बस. But listen, so dating in 2024 versus dating now. चलो ये आपसे no, शुरू you करेंगे. mean dating now versus dating before? Yeah, dating in 2024. 2024 भी अभी है, नाउ भी अभी है. Now मतलब oh sorry, I mean like this only. बिल्कुल सही पकड़ा आपने यार, मैं बह गई थी. dating back then, dating now is ridiculous. Matlab, what they call it, situationships. Matlab, I mean, Gen Z is like, you know, and the problem is I'm a millennial, okay? But I'm also that, like, I'm that young millennial. So I'm in that in-between bracket, yeah. Matlab, एक dating app मैंने join किया and it's so, like, मतलब इतना खतरनाक मैंने कभी नहीं देखा. जो लोग मुझे like कर रहे हैं, I'm like, oh my god, is this like my future? You know what happens कि कई बार जो बंदा लाइक करता है ना, खुद पे मैं डाउट करने लगती हूँ क्या मैं इतनी ऐसी सी दिखती हूँ कि ये भी मुझे लाइक कर But it's not one बंदा ना, मतलब अगर 5-6 ऐसे आपको लाइक कर रहे हैं तो it's like शायद मैं प्रॉब्लम हूँ भाई. मतलब you know, I'm very scared. I've actually told my father, it's like, अगर आपको एक अच्छा लड़का मिलता है तो you know, देख लो. डेटिंग ऐप पे तो कहाँ लड़के मिलते हैं यार. मैं पूछने ही वाली थी यार, ये जमाना में ये ऐसा ही हो रहा है. You don't understand. ऐसा कुछ ऐसा कैसे ऐसे मतलब डेटिंग ऐप आपको भी पता है कि वो भी
किस जोन में है वो, किस लिए वो चल भी रहा है, किसी मार पे बैठा है, अगर पंजाबी में बोलो। शादीशुदा लोग should not be in this conversation. ओके नहीं तो आप करो फिर, हमारा एक्सपीरियंस हम अपनी जेब में रखते हैं भाई। मतलब नहीं आप बहुत लोग जरूरी है सही ज्ञान लेना निकले उस टाइम पे, आई फील सही निकले। अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे आपने बोला कि डेटिंग उस टाइम पे, मेरी डेटिंग तो मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इनसे भी बैक हूं। मैं जब तब ऑर्कुट होता था जब मैं कॉलेज में था। ऑर्कुट क्या करते थे, पोक करते थे? अरे स्क्रैप करते थे, स्क्रैप करते थे। और एक उसमें और पोक आ गया था फेसबुक पे था पोक, करेक्ट। तो वहां से शुरू हुआ। आप मानोगे, मतलब जहाँ पे आप लिख रहे हो और सब पढ़ रहे हैं, जहाँ सबको पता है, और आप, और कई बार कोई कोई ऐसी लड़की होती थी जो बहुत फेमस है कॉलेज में, यहाँ बोलो बहुत सुंदर है, तो आपको अपना स्क्रैप भी देखना पड़ता था, तीसरे चौथे पेज पे चला जाता था, मतलब इतने आते थे। तो मतलब मेरी उस टाइम की है, मतलब उस टाइम तो ना तो फोन। फिर क्या लिखा आपने ऐसा? मैं वही बताने वाला हूँ कि ये जो फोन वाला था ना, इससे बहुत अच्छा था वो, क्योंकि आज के टाइम पे वो झिझक निकल गई है, और वो इंस्टेंट, वो पेशेंस खत्म हो गया है, सोच समझ के लिखने वाला भी चला गया है, वो पेशेंस खत्म हो गया आज के टाइम पे। मतलब आपका क्या है कि एक रात में आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, कि मतलब एक रात आपने बात की 2 घंटे और सुबह लव यू पहुंच जाता है। No, सुबह उन लोग निकल भी जाते हैं, please, हाँ, like I ये know चलो भाई people, थोड़ा ज्यादा आगे हो गया। No, people are doing things before being friends and then they become friends later. I'm like, how is that possible? मतलब क्या कर रहे हैं लोग आजकल? मतलब यार आज के टाइम पे मुझे लगता है कि तो हम जितने मेरे दोस्त लोग हैं आसपास, तो जिनकी कोई नहीं अभी, जहाँ जो अभी भी सिंगल हैं, उनका तो चलो बोलना ही क्या है, जो मतलब बोलना है क्या है इन द सेंस कि मतलब उसको तो क्या बोले, अभी वो तो सिंगल ही है। पर जो किसी रिलेशनशिप में है ना, तो मेरा उसको यही एडवाइस होती है कि भाई देख, तू इस बंदी को अच्छे से जानता है, ठीक है, ये तुझे उसे तो तेरा पता है, ठीक है, झगड़े हर जगह होते हैं, झगड़े ये भी नहीं है कि इसके बाद जो तू रिलेशनशिप में जाएगा उसमें नहीं होंगे, ये उसमें भी होंगे, और कल को तेरी शादी हो जाती है उसके बाद भी होंगे। और ये रिलेशनशिप है एडजस्टमेंट्स का, कि जब तक आप एडजस्ट करोगे तब तक रिलेशनशिप चलेगा, जो कि आज के टाइम पे हर बंदा बोलता है कि भाई हमें जरूरत नहीं है, एडजस्ट करेगा। मेरी लाइफ, एक तो ये बहुत चीज हो गई है ना कि मेरी लाइफ। तो जैसे कि अगर 2024 में जा रहा होता है लव स्टोरी शुरू करने के लिए, तो बंदी तो कह देती है अभी तो नहीं, अभी तो मेरी लाइफ है, अभी आगे और देखती हूँ, बतेरे ऑप्शंस हैं, हो फिर सकता क्या था। मैं तभी तो बोलता हूँ, मैं मतलब बहुत चीजों में मैं बहुत, चलो हाँ ठीक है, I'm feeling very lost right now, but thanks। मैं समझ गया, सुन के मतलब बहुत चीजों में ना मैं अपने जो हमारी जनरेशन है, जो मैं उनको लकी मानता हूँ कि वो इस टाइम पे उनकी जवानी आई, जब इस टाइम पे बचपन था उनका, जब उस टाइम पे अभी वो मैच्योर हो गए हैं। ये बहुत, क्योंकि अभी जो बच्चा अभी हुआ है उसको आप मतलब अगर छोटे से बच्चे को फोन पकड़ा दो, उसको सब पता है कि अच्छा रील्स ऐसे ऊपर होनी है, अच्छा व्हाट्सएप है, ये यूट्यूब है, अभी और आ गया है कि आपने उसका माइक पे बोल दिया कि अच्छा ये लिखना भी जरूरी नहीं है कि आपको वॉइस नोट भेज दो। तो मतलब आप अगर म्यूजिक इंडस्ट्री को मैं अगर इसमें आपको बोलना चाहूँ कि लाइक मैंने कैसेट से सीडी से पेन ड्राइव से ऑनलाइन जो फेक चलते थे, पायरेटेड वाली उसके एप्स बाद जाके, स्ट्रीमिंग pksongs.com, हाँ, उसके बाद स्ट्रीम्स पे आते देखा है। आप ऐसे देखो कि मतलब जब मैंने इंडस्ट्री में शुरू किया था, तब मतलब कोई भी लेबल जब हम किसी के पास जाते थे, वो बोलते थे यार पायरेसी बहुत है, भाई पायरेसी बहुत है, बिग प्रॉब्लम, बाबा कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। और आप मानोगे हमारे आर्टिस्ट लोग इसके लिए धरने लगाते थे, वो भी एक टाइम था, प्रोटेस्ट करते थे, बोलते थे कि यार पायरेसी खत्म होनी चाहिए, सरकार कुछ करना चाहिए। तो आप देखिए कैसे घूमा, भी स्ट्रीमिंग पे चला गया, और आर्टिस्ट आज के टाइम पे इतना इंडिपेंडेंट हो गया है कि उसको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं अपने कंटेंट के लिए। पहले क्या होता था कि जब हम थे तो हमें हमारी कंटेंट को इस तरीके से जज किया जाता था कि इसका कंटेंट सिमिलर है जो इससे पहले कुछ चला है, कि अगर किसी और का गाना कोई हिट हो गया है तो ऐसे वाले को चांस देते हैं, तो इसके एल्बम में कुछ अगर ऐसा है जो ऐसा गाना है तो उसके लिए चांस देते थे। और वो बोलते थे कि हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, पैसा कोई नहीं देंगे, पैसा कुछ नहीं खर्चेंगे इस पे, हमें वीडियो भी बना के ला के दो, हमें एल्बम भी बना के ला के दो, हम सिर्फ आपको अपना प्लेटफॉर्म देंगे कि हम रिलीज करेंगे आपका गाना, हम अपना लोगो देते हैं। माय गॉड। तो मतलब वहां से आप ये देखो कि आज के टाइम पे
ऐसी स्टेज आ गई है कि लेबल्स के पास गाने लेके नहीं जाता आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट को अभी समझ आ गई है कि मतलब उसका गाना चाहे 10 रुपए का है कि 100 रुपए का है, वो उसका है और लाइफ टाइम के लिए उसका है, चाहे उसको 5 से 6 10 20 बार रिक्रिएट कर दे, वो पता नहीं क्या, चाहे नेचर लगा लो, जो निकल गया वो निकल गया। मेरे दिमाग में ये ऐसे रहता है। बट मैंने मोस्टली जितने अपनी लाइफ के बड़े गाने दिए हैं मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं सब लेबल्स को, मैंने 1 रुपया अपनी जेब में नहीं डाला। मैंने हर बार क्या किया है कि मतलब कभी पता ही नहीं था, हमें तो ये होता था हमारा गाना रिलीज हो रहा है, इस लेवल पे रिलीज हो रहा है, कुछ था ही नहीं। आई नो दैट, और शोज कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, तो हमें कभी पैसे की ऐसे फील नहीं हुई। बट क्या था कि ये क्लियर नहीं था कि ये सीन अगर जो गाना मान लो कि एक क्रिएटर है जिसने क्रिएट की चीज, ये उसका थॉट है, उसका विजन है और उसी की क्रिएटिविटी है, आप जाके सिर्फ ऐसे किसी को दे रहे हो, लाइफ टाइम के लिए आपने दे दिया, और उसके बाद उसने राइट्स में पता क्या लिखा हुआ है, आप मानोगे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे ये भी लिखा होता है कि धरती के अलावा कहीं पे लाइफ पाई जाती है, अगर वो ये गाना वहां चलता है तो उसके राइट्स भी हमारे पास है। Oh my God. मतलब अगर मार्स पे लाइफ पाई जाती है तभी आर्टिस्ट इतने प्रोटेक्टिव हैं इन दिस जनरेशन टू नॉट गिव इट, कंटेंट को लेके। मतलब कंटेंट अभी तो वो भी शुरू, रॉयल्टीज भी शुरू हो गई हैं, राइटर को भी आती है, करेक्ट, अब तो टाइम्स हैव चेंज्ड सो मच, खुल गया। तुम अब देखो मैंने कहाँ से शुरू किया और कहाँ आया, तो मतलब ये बिल्कुल ही चेंज हो गया है आज के टाइम पे। और आज का टाइम बेस्ट टाइम है अगर कोई नया आर्टिस्ट कुछ करना चाहता है, अगर उसके पास मतलब खुद म्यूजिक भी करता है। मैं कितने नाम ऐसे ले दूंगा आपके पास कि जो अंडरग्राउंड काम कर रहा था, मतलब उसने 3-4 साल किया, उसका एक गाना निकला और एक गाना निकलने के बाद उसका सारा कंटेंट ऐसे आगे आया। I know. मैं किंग हो गया, करेक्ट, तलविंदर हो गया, ये ऐसे तो नहीं है कि एक दिन में हिट हो गए, ये काम करते आ रहे थे, बट इसका एक टाइम आया जब निकला और फटा फिर उस टाइम पे एकदम। वो ऐसे निकला कि मतलब सबने सुना। वेरी वेल सेड। आपकी मूवी के ट्रेलर में एक डायलॉग है जिसमें ही सेज, अ फ्रेंड सेज टू हिम, अब तू मर्द वाली कैटेगरी में आ गया है। तो आप दोनों को ये सवाल है, फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ गाइज पॉइंट ऑफ व्यू, एक लड़का मर्द कब बनता है? अलग अलग तरीके की मुझे लगता है व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू है। दिस इज ओपन टू यू। हां, इट कैन बी स्मार्ट, इट कैन बी फनी, व्हाटएवर 3 कमेंट्स यू गिव। मर्द तो आफ्टर 18 ही बनता है वैसे तो मैच्योर होने के बाद, अगर बेसिकली सोचा जाए। बट फिर भी मुझे लगता है कि मर्द ऐसी एक वर्ड बनाया हुआ है कि भाई उसको इस तरीके से बोलने के भी भाई तू मर्द है, ये मर्दों वाली बात है, ये बात है, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, मैच्योरिटी को हम बोल सकते हैं कि अगर किसी वर्ड इसको एक्सप्लेनेशन देनी हो तो मैच्योरिटी, जब आपको सही गलत का पता चल जाए और आपके एथिक्स आपको पता हो कि ये मेरे एथिक्स हैं, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, मतलब वो चीज़ों में आप बोल सकते हो कि अभी क्या बात है। वेरी नाइसली, वेरी जेंटलमैनली आंसर ही इज गिवन। ओके, फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक लड़का मर्द कब बनता है? जब वो लड़की की हर बात सुनते हैं। यार ये लो, I like it. Girls, अभी this is girl math for you. अभी ये बस आपके मदद ये डीएम के लिए काम हो रहा है मैडम, ये डीएम। अभी इसके बाद जाके डीएम जब भरेगा ना, मैसेज पे मैसेज गिरेंगे। She is really looking for getting like settled so technically. Not, I'm very happy. काम पे ध्यान, it's okay. Like आप अपनी situationships रख ले, नहीं चाहिए। कोई एक ऐसा लाइन, पिकअप लाइन which has always worked for you, आपको लगता है कि ये तो हमेशा हिट बैठेगी? भाई अपनी तो स्माइल काम करती थी। मतलब दूसरी चीज बोल दिया मैंने। He's like given such a फाड़ू line and then he's just like नहीं, बट क्या है वो जो रह गया आते आते? नहीं, आते आते नहीं रह गया, मैं बोल रहा हूँ कैमरा ऑन है और मैंने बोल दिया। ये मैं ये सोच रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड भी हो गया भाई, अभी चलेगा ही, बंदा बोलेगा अच्छा इसको पता है, मतलब ये जो खेलता है। बट नहीं, बट मुझे बहुत बहुत देर तक तो ये पता नहीं चला था, बट मुझे फिर चल रहा है, हाँ। कवर अप नहीं, बट धीरे धीरे जब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हुए तो मुझे लगा कि शायद ये चीज काम करती है, तो फिर मैंने ये गानों में भी चलाई, समझे? मतलब हम तो समझ रहे, हमें तो पता, हमने बताया काम करती है। No, but unfortunately some boys have a creepy smile, you know, तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता। I feel like इतना क्यों, मतलब दंद पाड़ी जानना है। ठीक है, और दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सिंस वी नो दैट यू नो यू आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद पंजाबी, बट हम फुर्तीला राउंड खेलेंगे। ठीक है। आपको मैं 3 वर्ड्स दूंगी और आपने मुझे बताना है उनका मतलब क्या है। ओके। 3 वर्ड्स भी नहीं है, 2 वर्ड्स हैं, तीसरा तो आपने डायलॉग ही बोलना है। हाँ जी, हाँ जी, यू कैन ऐड, फील फ्री टू ऐड वर्ड्स। मेरे पास अच्छा, मैं उसके साथ मिलते जुलते वर्ड्स बोलता रहूं पंजाबी में ही? आप पंजाबी में इनको फ्रेज दो ना,
कोई एक अच्छा, आधा हाँ, इनको ठीक है, लेट हर टेल व्हाट Done, डज इट done, मीन. done, done. फुर्तीला राउंड है ये, हमको फुर्ती देखनी है मायरा की. जैसे आई हैड केप्ट वो ਤੁਹਾਡੀ क्या गई मर्दानगी ਤੁਹਾਡੀ टटे कूच गई, क्या है वो, प्लीज से इट. Maybe it's not just sounding nice coming from my mouth also. कि टट्टे खूच गई थोड़ी मर्दानगी और फोन उठा के भाग जाता है. वो बोलता है मतलब भाड़ में जाते रही मर्दानगी. One more phrase, चलो दो अब कुछ अच्छा सा दो. कणक. यार मम्मी 100 मीन अच्छा चल रहा था यार. नहीं इट्स वेरी इजी. कणक कितने गाने हैं यार. एक ओ पक्की कणक नु अग लग जाऊगी ना वट्टा उत्ते नच कुड़िए. नाच के भी आए हो आप वहां जाके. रील भी डाली है आपने. गार्डन. Yes, it's a garden of wheat. Oh, okay. But fields. हाँ. Wheat fields. Khet. हाँ. एक और ये तो गाने में ही पकड़ लोगे आप. ओके. नहर. नहर. उस नहर दे किनारे तेरी याद सहारे चंगे माड़े नहर मतलब नदी. यस. एक और कर दो. Last. Make it a tough one. You're doing very easy for her. You're giving very easy. नहीं easy नहीं है. Easy तो नहीं है. नहर कैसे easy नहीं, हिंदी वर्ड है वैसे तो. नहीं, कहाँ नदी. पंजाबी वर्ड है. दोनों गैंग अप हो गए. चलो ठीक है. कुछ और सोचूं. तीसरा कोई. यार ऐसे एकदम से दिमाग में एकदम से नहीं आता ना. आप कुछ हेल्प करो. कुछ कोई गाना बताते हैं ना, कोई गाना निकालते हैं एकदम ऐसे ठेठ पंजाबी वाला. कोई गाना निकाल दो ना. चमकीले का कोई गाना गा दो. चल रहा है बड़ा. ललकारा. पूरा सेंटेंस दे. पहले ललकारे नाल मैं डर की, दूजे ललकारे ना अंदर वड़ गई, तीजे ललकारे नाल नौ मेरा लेके सिद्धा आन के दरां दे विच वज्जिया नी पट्टू फिरदा. ये इसके बाद आता है. फिरदा शराब नाल रज्जिया नी पट्टू फिरदा. फिफ्थ ललकारे तक she'll give up. Looking at her के बाद face. क्या करते हैं पंजाबी बंदे? सो जाते हैं. You have clearly not dated a Punjabi guy. No, I have. They were half Punjabi, but गेड़ी मारते. गाते. ये गंदा ललकारा था. अगर किसी पंजाबी ने सुन लिया ना, बंदा बोलेगा मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ. ये ऐसे ललकारा बोलते हैं. मैं ऐड भी I कर did रही not know this. This is known as ललकारा. This is not known as हूँ. ललकारा. और वो ब्रा ये रहता है. इसको ललकारा कहते हैं. हाँ, इसको ललकारा कहते हैं. Well, even I got this educated. बहुत गाने हैं ऐसे. Wow. एक अभी दलजीत भाई का गाना चल रहा है. जीप दी हुड चों जट ने मारिया ललकारा नी. Correct. All right then, this is it. What is that one message you want to give to the people who are waiting for Furtila? Who are your fans? Who are your friends? साउंड प्रूफिंग होने वाली है आपके स्टूडियो की. बाकी ठीक हम भी ऐसे ही चल रहे हैं यार. नहीं. No, but okay, Furtila 26 अप्रैल पे रिलीज हो रही है. So please जाके देख लो. बहुत स्वीट सोनी कहानी है एंड कॉलेज की कहानी है. सो आप बहुत इन्जॉय करोगे. और हाँ, जस्सी जी भी है, मैं भी हूँ, अमर सर ने डायरेक्ट किया. बहुत वखरा स्टोरी है. तो या मजा तो आएगा. So cute. She's used up all the Punjabi words in this I two did. lines that she's ऐसा just जितना मैं spoken. जानती हूँ, मैं सोनी पूरा स्वीट बोल है और बहुत वखरा है. वखरा स्वैग नहीं. All the very best, guys. Both of Thank you you look so much. stunning in it, and you guys make a beautiful pair. Thank you you. so much for coming to Red FM. Thank you so much. Thank you. Thank you. 93.5 Red FM. बजाते रहो.